بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے اولیاء اللہ کا۔ انہی میں ایک حضرت بہلول دانا بھی تھے، ان کے بارے میں آپ کو تفصیلی بتائیں گے۔ ویڈیو بہت خاص ہونے والی ہے، اس لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا اور آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ولی کے معنی ہیں خدا کا دوست، خدا کے قریب، جذبہ عشق رکھنے والا، ایسا عشق جو طالب کو مطلوب کی ذات میں اس قدر محو اور مستغرق کر دیتا ہے کہ وہ اللہ پاک کی اطاعت اور رضا سے ذرہ بھر سرتابی نہیں کرتا۔ دوستوں، اولیاء اللہ سے مراد وہ مخلص اہل ایمان ہیں جو اللہ پاک کی بندگی اور گناہوں سے اجتناب کی وجہ سے اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ روز قیامت اولیاء اللہ اور صالحین شفاعت کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت کو شرط قبولیت بخشے گا۔ اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق کی رہنمائی کے لیے ان لوگوں کے متعلق بھی واضح ارشاد فرمایا ہے جو اللہ کے دوست ہونے کا دعوت تو کرتے ہیں لیکن کسی بھی لحاظ سے اللہ کے ساتھ دوستی کے معیار پر پورا نہیں اترتے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اے پیغمبر آپ فرما دیجئے، اے یہودیوں، اگر تم یہ گمان کرتے ہو کہ سب لوگوں کو چھوڑ کر تم ہی اللہ کے دوست یعنی اولیاء ہو تو موت کی آرزو کرو، کیونکہ اس کے اولیاء کو تو قبر و حشر میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی اگر تم اپنے خیال میں سچے ہو۔ آیت کریمہ سے ثابت ہوا کہ اللہ پاک کے دوستوں اولیاء اللہ کی پہچان یہ بھی ہے کہ جب انہیں جان دینے اور تمام لذتوں سے دستبردار ہونے کی دعوت دی جاتی ہے تو وہ لبیک کہتے ہوئے اس طرح دوڑتے ہیں گویا بھوکوں کو غذا اور پیاسوں کو پانی کی پکار سنائی دیتی ہے۔ تاہم جو جھوٹے اور اللہ کی ولایت سے محروم ہیں وہ انکار کر دیتے ہیں، اور یہ ان کے جھوٹے ہونے کی مہر ہے جو خود انہوں نے اپنے اوپر لگا دی۔ حقیقت یہ ہے خلق کی ظاہری اور باطنی اصلاح کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لائے۔ جب نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلہ ختم نبوت ہو گیا تو نبی کریم علیہ السلام کی نظر کرم سے دو گروہوں کے ذمہ یہ کام سپرد کیا گیا۔ ظاہری اصلاح کے لیے علماء کرام مقرر ہوئے مگر باطنی اصلاح کے لیے اولیاء اللہ کا گروہ منتخب ہوا۔ تمام ارکان شریعت پر عمل اور آگہی کا کام علماء کے سپرد ہوا، مگر ان تمام امور میں خلوص کا درس جس کی بدولت مقبولیت کے مقام تک رسائی ممکن ہو اولیاء اللہ کے سپرد ہوا۔ ایمان کا درس عالم دین سے ملتا ہے تو اس کی حفاظت کا مقام اولیاء اللہ سے ملتا ہے۔ اس طرح اولیاء علماء کے شاگرد ہوئے لیکن دوسری طرف علماء اولیاء کے مرید ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ وقت نظر شیطان نے امام فخر الدین رازی عالم دین کے دلائل توڑ دیے، مگر خواجہ نجم الدین کبری رحم اللہ علیہ نے جو ان کے مرشد اور ولی اللہ تھے سینکڑوں میل دور بیٹھے بھی اپنے مرید کی مدد کی اور امام فخر الدین رازی سے بے ساختہ کہلوایا کہ میں نے بغیر دلیل کے خدا کو مانا ہے اور اسی پر میرا ایمان ہے۔ مرشد کامل ولی اللہ کی اس مدد کی وجہ سے مولانا فخر الدین رازی ایمان سلامت لے کر دنیا سے رخصت ہوئے۔ علامہ محمد عمر الدین نعیمی نے اپنی کتاب اولیاء اللہ کا مقام میں سیدنا غوث اعظم کی نگاہ فیض کا ایک واقعہ درج کیا ہے۔ ایک ڈاکو جنگل میں غوث پاک کے سامنے آیا تو ڈاکہ ڈالنے کی نیت سے غوث پاک کا جبہ مبارک چھیننے لگا۔ غوث پاک نے دعا کی کہ مولا اس کا ہاتھ میرے دامن سے نہ چھوٹے، جس کے نتیجے میں اس کو وقت کا ولی بنا دیا گیا۔ غوث پاک کی ایک نگاہ نے وہ کام کیا اور ڈاکو کو وہ مقام عطا کر دیا جو سے ساری عمر نماز پڑھ کر، روزے رکھ کر، حج اور خیرات کر کے حاصل نہ ہو سکتا تھا۔ معلوم ہوا کہ جس طرح دنیا کے سفر میں راہبر کی ضرورت ہے اسی طرح عالم بالا کے مسافر کو بھی راہبر طریقت کی ضرورت ہے، مگر آج کل کے لوگ عقائد باطلہ میں ولی اللہ سے نفرت کے سوا کچھ نہیں کرتے، لہٰذا عالم بالا کے سفر میں ان کا راہبر شیطان کے سوا اور کون ہو سکتا ہے جو ان سب کو لے ڈوبے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بآواز بلند یہ بتاتا ہے کہ دیکھو میں فلاں شخص کو دوست رکھتا ہوں، بس تم بھی اس سے محبت رکھو۔ بس جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرتے ہیں، پھر جبرائیل آسمانی مخلوق میں ندا دیتے ہیں کہ اللہ عز و جل فلاں بندے سے محبت کرتا ہے لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ شیخ ابو العباس کے مطابق خدا کا پہچاننا آسان ہے مگر ولی کا پہچاننا مشکل ہے، کیونکہ خدا اپنی ذات اور صفات میں مخلوق سے ممتاز ہے اور ہر مخلوق اس پر گواہ ہے، مگر ولی شکل و صورت میں اور اپنے افعال میں عام انسانوں کی طرح ہے۔ دوستو، ایسے ہی ایک ولی اللہ حضرت بہلول دانا بھی گزرے ہیں۔ ان کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ بہلول، یہ جنہیں بلول دانا بھی کہتے ہیں، واحد بن عمرو کا لقب تھا جو ایک صوفی بزرگ تھے۔ آپ بغداد اور ارد گرد کے ویرانوں میں بے فکری اور دنیا سے بے خبر گھومتے رہتے۔ آپ ایک درویش صرف فلسفی تھے۔ وہ امام موسیٰ کاظم کے دوست دار تھے اور خلیفہ ہارون الرشید کے رشتہ داروں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ آپ پانچویں عباسی خلیفہ ہارون الرشید کے دور مارچ 766 سے مارچ 809 میں ایک فلاسفر، ولی کامل اور تارک الدنیا درویش کے طور پر پہچانے جاتے تھے۔ ان کا کوئی گھر یا ٹھکانہ نہیں تھا، شہر میں ننگے پاؤں پھرتے اور جس جگہ تھک جاتے وہیں ڈیرا ڈال لیتے۔ بعض لوگوں نے انہیں مجذوب بھی لکھا ہے کیونکہ وہ عشق الہی میں گم اور ارد گرد کے ماحول سے بے خبر ہوتے تھے۔ بہت کم لوگوں کی طرف التفات کرتے لیکن جب کبھی عوام الناس کی طرف منہ کرتے
تو حکمت و دانائی کی بہت ہی عجیب و غریب باتیں کرتے۔ کوفہ میں پیدا ہونے والے بہلول کا اصل نام وہب بن عمرو اور تعلق عرب قبیلے بنو مان سے تھا۔ ان کے والد چھٹے امام جعفر الصادق کے شاگرد تھے، لیکن کچھ وقت ساتویں امام موسیٰ کاظم کی صحبت میں بھی گزارا۔ بہلول کا شمار بھی امام موسیٰ کاظم کے پیروکاروں میں ہوتا تھا۔ جب خلیفہ ہارون الرشید نے امام موسیٰ کاظم کو قید کرنے کے بعد ان کے تابعین کے خلاف کارروائیاں شروع کی تو وہب اور کچھ دوسرے لوگوں نے امام سے قید خانے میں ملاقات کر کے آئندہ لائحہ عمل کے لیے ہدایات مانگی۔ امام عالی مقام نے جواب میں صرف ایک لفظ جیم لکھ کر اپنے عقیدت مندوں کے حوالے کیا۔ ہر شخص نے جیم کو اپنے انداز میں لیا، کچھ نے اسے جلا وطن سمجھا اور بعض نے اس کے معنی جبل یعنی پہاڑوں میں روپوشی لیا، لیکن وہب نے اسے جنون یعنی مجنونیت میں تبدیل کر دیا۔ انہوں نے اپنی شہوانہ زندگی ترک کر کے اور پھٹے پرانے کپڑے پہن کر گلیوں میں نکل آئے۔ خلیفہ ہارون رشید سے ان کی ملاقات 188 ہجری میں خلیفہ کے سفر حج کے دوران کوفہ میں ہوئی، جس کا ذکر امام ابن کثیر نے بھی کیا ہے۔ بہلول نے ہارون کو جو نصیحتیں کی ان سے متاثر ہو کر وہ انہیں اپنے ساتھ بغداد لے آیا اور پھر بہلول کا ٹھکانہ بغداد کی گلیاں ہی رہیں۔ بہلول کا مزار بھی بغداد میں ہی ہے، جس کے گوشے کے بارے میں مشہور ہے کہ وہاں سکھ مذہب کے بانی گرو نانک نے چلا کاٹا تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک دن بہلول دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھے گیلی ریت کی ڈھیریاں بنا رہے تھے اور ہارون الرشید کی چہیتی ملکہ زبیدہ اپنے محل کے جھروکے سے بڑے انہماک کے ساتھ دیکھ رہی تھی۔ وہ مٹی کی ڈھیری بناتے اور پھر خود ہی سے مسمار کرتے۔ ملکہ جھروکے سے اتر کر اپنی سہیلیوں کے ہمراہ دریا کنارے آئی اور پوچھا، کیا کر رہے ہو بہلول؟ بہلول نے ادائے بے نیازی سے کہا، جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ ملکہ نے سوال کیا، اگر کوئی تم سے محل خریدنا چاہے تو فروخت کرو گے؟ بہلول نے کہا، ہاں ہاں کیوں نہیں، میں بناتا بھی ہوں اور فروخت بھی کرتا ہوں۔ ملکہ نے پوچھا، بتاؤ ایک محل کی قیمت کیا ہے؟ بہلول نے بے ساختہ کہا، 3 درہم۔ بعض لوگوں نے 1 درہم بھی لکھا ہے۔ ملکہ کے حکم پر بہلول کو 3 درہم اسی وقت ادا کیے گئے۔ یہ واقعہ ملکہ نے اپنے شوہر خلیفہ ہارون الرشید کو بتایا، جسے خلیفہ نے مذاق میں ٹال دیا۔ لیکن رات کو ہارون نے خواب میں جنت کے مناظر دیکھے، جن میں آبچاروں اور مرغزاروں کے علاوہ خوبصورت محلات بھی تھے۔ سرخ یاقوت کے ایک محل پر اس نے زبیدہ کا نام بھی لکھا دیکھا۔ ہارون نے سوچا کہ دیکھوں تو صحیح کہ یہ میری بیوی کا گھر ہے۔ وہ محل میں داخل ہونے کے لیے جیسے ہی دروازے پہ پہنچا، دربان نے روک لیا۔ ہارون الرشید کہنے لگا، اس پر تو میری بیوی کا نام لکھا ہے، اس لیے مجھے اندر جانا ہے۔ دربان نے کہا، نہیں، یہاں کا دستور الگ ہے، جس کا نام ہوتا ہے صرف اسی کو اندر جانے کی اجازت ہے، لہذا آپ کو داخل ہونے کی اجازت نہیں۔ جب دربان نے ہارون کو پیچھے ہٹایا تو آنکھ کھل گئی، لیکن بیدار ہونے پہ خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے زبیدہ کے حق میں بہلول کی دعا قبول کی۔ چنانچہ وہ ساری رات اسی افسوس میں کروٹیں بدلتا رہا۔ اگلی شام وہ بہلول کو تلاش کرتا کرتا دریا کنارے پہنچ گیا۔ بہلول ایک جگہ بیٹھے اسی طرح مکان بنا رہے تھے۔ ہارون نے پوچھا، کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے کہا، جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ ہارون نے پوچھا، بیچو گے؟ تو بہلول نے کہا، ہاں کیوں نہیں، بناتا بھی ہوں اور فروخت بھی کرتا ہوں۔ ہارون نے سوال کیا، بتاؤ ایک محل کی قیمت کیا ہے؟ تو بہلول نے جواب دیا، تیری پوری سلطنت۔ ہارون الرشید نے کہا، اتنی قیمت تو میں نہیں دے سکتا، کل تو آپ 3 درہم کے بدلے دے رہے تھے اور آج پوری سلطنت مانگ رہے ہیں۔ بہلول دالا نے کہا، خلیفہ کل بن دیکھے معاملہ تھا اور آج تم محل دیکھ کر آئے ہو۔ خلیفہ یہ سن کر مایوسی سے گھٹنوں کے بل بہلول دانا کے سامنے بیٹھ گیا اور کہنے لگا، حضرت آپ مجھ سے میری سلطنت لے لیں لیکن مجھے ایک محل دے دیں۔ جب بہلول دانا نے خلیفہ کی عاجزی دیکھی تو کہا، میں تمہاری اس سلطنت کا کیا کروں گا؟ اس دنیا کی محبت تو بہت سی گناہوں کی جڑ ہے، جاؤ ایسی سلطنت اپنے پاس رکھو، میں اس محل کو بھی تمہارے لیے 3 درہم میں فروخت کرتا ہوں۔ اللہ والوں کی باتوں میں حکمتیں چھپی ہوتی ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اولیاء اللہ کے مطابق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنہیں دیکھ کر اللہ عز و جل یاد آ جائے۔ اللہ پاک اپنے اولیاء کرام سے محبت کرتا ہے اور پھر اہل زمین کے دلوں میں بھی ان کی محبت ڈال دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث قدسی کے آخر میں یہ الفاظ ہیں، اور اگر وہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں اسے ضرور دیتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے پناہ مانگ کر کسی بری چیز سے بچنا چاہے تو میں ضرور اسے بچاتا ہوں۔ اولیاء اللہ وہ پاکیزہ اور انعام یافتہ ہستیاں ہیں جو انعمت علیہم کے مقام پر فائز ہیں۔ علم ان کا اعزاز، عشق خداوندی ان کا افتخار، محبت رسول ان کا امتیاز، قرآن کی پہچان، عمل صالح ان کی زندگی کا شعار، فقر ان کی ڈھال، سادگی و درویشی ان کی ذرہ بن کر انہیں راہ حق پہ چلنے رہنے کا حوصلہ بخشتے ہیں۔ دوستوں، ہمارے ذہن میں ایک سوال بار بار ابھرتا ہے کہ اللہ کے دوستوں کی پہچان کیسے ہوتی ہے؟ تو آئیے آپ کو اللہ کے دوستوں کی زبان ہی بتاتے ہیں۔ حضرت بایزید بستامی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اولیاء اللہ مثل دلہن کے ہیں اور دلہن تک رسائی سوائے اس کے محرم کی کوئی نہیں کر سکتا کہ ولی راہ ولی میں شناست کے مطابق ولی کو ولی ہی جانتا ہے یا وہ شخص جس کو وہ نفع پہنچانا چاہے۔ اولیاء اللہ مستجاب الدعوات ہوتے ہیں، یعنی ان کی دعا اللہ پاک قبول فرماتا ہے۔
حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ کے بندوں میں سے بعض ایسے ہیں کہ اگر وہ قسم اٹھا کر کوئی بات کریں تو اللہ ضرور پوری کرتا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اولیاء اللہ وہ ہیں جن کے دلوں میں ایمان و یقین ہو، جن کا ظاہر تقوی اور پرہیزگاری میں ڈوبا ہوا ہو۔ جتنا تقوی ہوگا اتنی ہی ولایت ہوگی۔ ایسے لوگ محض نڈر اور بے خوف ہیں۔ قیامت کے دن کی وحشت ان سے دور ہے، نہ وہ کبھی رنج و غم سے آشنا ہوں گے۔ دنیا میں چھوٹ جانے پر انہیں حسرت و افسوس نہیں ہوتا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور بہت سے سلف صالحین فرماتے ہیں، اولیاء اللہ وہ ہیں جن کا چہرہ دیکھنے سے اللہ تبارک و تعالی یاد آ جائے۔ دوستوں، بارگاہ الہی میں اولیاء اللہ کے مقام و مرتبے کا اندازہ اس آیہ مبارکہ سے لگایا جا سکتا ہے۔ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عزت و مقبولیت کی بشارت ہے اور آخرت میں بھی مغفرت و شفاعت کی۔ اللہ کے وعدوں میں تبدیلی نہیں آتی ہے، یہی وہ عظیم کامیابی ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت شفیق بلخی رحمہ اللہ علیہ اور حضرت ابو تراب بلخی رحمہ اللہ علیہ حضرت بایزید بستامی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ کھانا کھانے کے وقت آپ کا ایک مرید بھی پاس تھا۔ حضرت شفیق بلخی نے کہا، اب تم بھی کھانا کھاؤ، مگر مرید نے انکار کیا اور کہا، میں روزے دار ہوں، روزہ نہیں کھول سکتا۔ پھر حضرت ابو تراب رضی اللہ عنہ نے کہا، آئیے ہمارے ساتھ کھانا کھائیے اور 1 سال کے روزوں کا ثواب حاصل کیجیے۔ مرید نے تب بھی انکار کیا۔ آخر آپ نے فرمایا کہ یہ درگاہ خداوندی سے راندہ گیا ہے، اسے چھوڑ دو۔ چنانچہ چند دنوں بعد وہ مرید چوری کے جرم میں گرفتار ہو گیا اور دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے۔ اولیاء اللہ کی زبان مبارک سے نکلنے والے الفاظ ان کا درجہ رکھتے ہیں۔ معروف بزرگ سیدنا سری سختی فرماتے ہیں، ایک بار مجھے قبرستان جانا ہوا۔ وہاں میں نے بہلول دانا کو دیکھا کہ ایک قبر کے قریب بیٹھے مٹی میں لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں۔ میں نے پوچھا، یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ جواب ملا، جو ایسی قوم کے پاس ہوں جو مجھے اذیت نہیں دیتی اور اگر میں غائب ہو جاؤں تو میری غیبت بھی نہیں کرتی۔ ایک دن بہلول بازار میں بیٹھے تھے، کسی شخص نے پوچھا، بہلول کیا کر رہے ہو؟ تو بہلول نے کہا کہ بندوں کی اللہ سے صلح کرا رہا ہوں۔ اس شخص نے کہا، پھر کیا بنا؟ بہلول نے کہا، اللہ تو مان رہا ہے لیکن بندے نہیں مان رہے۔ کچھ عرصے بعد اسی شخص کا قبرستان کے پاس سے گزر ہوا تو دیکھا بہلول قبرستان میں بیٹھے۔ قریب جا کے پوچھا، بہلول کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے کہا، بندوں کی اللہ سے صلح کرا رہا ہوں۔ اس شخص نے کہا، پھر کیا بنا؟ بہلول نے کہا کہ بندے تو مان رہے ہیں مگر آج اللہ نہیں مان رہا۔ دوستو، بہلول سے ایسے درجنوں واقعات اور دانائی کی باتیں منسوب ہیں۔ کچھ لوگ اسے کتابی باتیں کہتے ہیں اور بعض اسے روحانیت کی معراج مانتے ہیں، لیکن یہ طے ہے کہ جو بہلول دانا کہہ گئے وہ پتھر پہ لکیر۔ دوستو، لوگ حضرت بہلول دانا کے پیچھے پھرتے رہتے تھے۔ وہ جب کسی جگہ بیٹھ جاتے تو لوگ ان کے گرد گھیرا ڈال لیتے، جس کے بعد بہلول دانا بولتے رہتے اور لوگ ان کے اقوال لکھتے رہتے۔ کہتے ہیں ایک بار شیخ جنید بغدادی سفر کے ارادے سے بغداد روانہ ہوئے۔ حضرت شیخ کے کچھ مرید ساتھ تھے۔ شیخ نے مریدوں سے پوچھا، تم لوگوں کو بہلول کا حال معلوم ہے؟ لوگوں نے کہا، حضرت وہ تو ایک دیوانہ ہے، آپ اس سے مل کر کیا کریں گے؟ شیخ نے جواب دیا، ذرا بہلول کو تلاش کرو، مجھے اس سے کام ہے۔ مریدوں نے شیخ کے حکم کی تعمیل اپنے لیے سعادت سمجھی۔ تھوڑی جستجو کے بعد ایک صحرا میں بہلول کو ڈھونڈ نکالا اور شیخ کو اپنے ساتھ لے کر وہاں پہنچے۔ شیخ بہلول کے سامنے گئے تو دیکھا کہ بہلول سر کے نیچے اینٹ رکھے ہوئے دراز ہے۔ شیخ نے سلام کیا تو بہلول نے جواب دے کے پوچھا، تم کون ہو؟ میں ہوں جنید بغدادی۔ تو اے ابو القاسم، تم ہی وہ شیخ بغدادی ہو جو تم لوگوں کو بزرگوں کی باتیں سکھاتے ہو؟ جی ہاں، کوشش تو کرتا ہوں۔ اچھا، تو تم اپنے کھانے کا طریقہ تو جانتے ہی ہوگے، کیوں نہیں؟ بسم اللہ پڑھتا ہوں اور سامنے رکھے کی چیز کھاتا ہوں، چھوٹا نوالا بناتا ہوں، آہستہ چباتا ہوں، دوسروں کے نوالوں پہ نظر نہیں ڈالتا اور کھانا کھاتے وقت اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا۔ پھر دوبارہ کہا، جو لقمہ بھی کھاتا ہوں الحمدللہ کہتا ہوں، کھانا شروع کرنے سے پہلے ہاتھ دھوتا ہوں اور فارغ ہونے کے بعد بھی ہاتھ دھوتا ہوں۔ یہ سن کر بہلول اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنا دامن شیخ جنید کی طرف جھٹک دیا۔ پھر ان سے کہا، تم انسانوں کے پیر و مرشد بننا جانتے ہو اور حال یہ ہے اب تک کھانے کا طریقہ بھی نہیں جانتے۔ یہ کہہ کر بہلول نے اپنا راستہ لیا۔ شیخ کے مریدوں نے کہا، یا حضرت، یہ شخص تو دیوانہ ہے۔ ہاں، دیوانہ تو ہے مگر اپنے کام کے لیے ہوشیاروں کے بھی کان کاٹتا ہے، اس سے سچی بات سننی چاہیے، اب اس کے پیچھے چلے، مجھے اس سے کام ہے۔ بہلول ایک ویرانے میں پہنچ کر ایک جگہ بیٹھ گئے۔ شیخ بغدادی اس کے پاس پہنچے تو انہوں نے شیخ سے پھر یہ سوال کیا، کون ہو تم؟ خیر، تم کھانا کھانے کے آداب سے واقف ہو تو گفتگو کا طریقہ تو جانتے ہی ہوگے۔ شیخ نے جواب دیا، جی ہاں جانتا تو ہوں، تو بتاؤ کس طرح بات کرتے ہو؟ میں ہر بات ایک اندازے کے مطابق کرتا ہوں، بے موقع اور بے حساب نہیں بولے جاتا۔ سننے والوں کی سمجھ کا اندازہ کر کے خلق خدا کو اللہ اور رسول اللہ کے احکام کی طرف توجہ دلاتا ہوں۔ یہ خیال رکھتا ہوں کہ اتنی باتیں نہ کہوں کہ لوگ مجھ سے بیزار ہو جائیں۔ باطنی اور ظاہری علوم کے نقطہ نظر میں رکھتا ہوں۔ اس کے ساتھ گفتگو کے آداب سے متعلق کچھ اور باتیں بھی بیان کی۔ بہلول نے کہا، کھانے کے آداب تو ایک طرف رہے، تمہیں تو بات کرنے کا ڈھنگ بھی نہیں۔ پھر شیخ سے منہ پھیرا اور ایک طرف چل دیے۔ مریدوں سے خاموش نہ رہا گیا۔ انہوں نے کہا، یا حضرت، یہ شخص تو دیوانہ ہے،
आप दीवाने से भला क्या तवक्को रखते हैं? भाई मुझे तो इससे काम है, तुम लोग नहीं समझ सकते। इसके बाद शेख ने फिर बहलोल का पीछा किया। बहलोल ने मुड़कर देखा और कहा, तुम्हें खाना खाने और बात करने के आदाब नहीं मालूम है, सोने का तरीका तो मालूम ही होगा। शेख ने कहा, जी हाँ मालूम है। अच्छा बताओ किस तरह सोते हो? जब मैं इशा की नमाज और दुरूद वज़ाइफ से फारिग होता हूँ तो सोने के कमरे में चला जाता हूँ। ये कहकर शेख ने सोने के वो आदाब बयान किए जो उन्हें बुजुर्गाने दीन की तालीम से हासिल हुए थे। बहलोल ने कहा कि मालूम हुआ तुम सोने के आदाब भी नहीं जानते। ये कहकर बहलोल ने जाना चाहा तो हजरत जुनैद बगदादी ने उनका दामन पकड़ लिया और कहा, हजरत मैं नहीं जानता, अल्लाह के वास्ते मुझे सिखा दो। कुछ देर बाद बहलोल ने कहा, मियाँ ये जितनी बातें तुमने कही सब बात की चीजें हैं, असल बात मुझसे सुनो। खाने का असल तरीका यह है कि सबसे पहले हलाल की रोजी होनी चाहिए। अगर ग़िज़ा में हराम की आवेजिश मिलावट हो जाए तो जो आदाब तुमने बयान किए उनके बरतने से फायदा ना होगा और दिल रोशन होने के बजाय और तारीक होगा। शेख जुनैद ने बेसाख्ता कहा, जज़ाकल्लाहु खैरन। फिर बहलोल ने बताया, गुफ्तगू करते वक्त सबसे पहले दिल का पाक और नीयत का साफ होना जरूरी है और इसका भी ख्याल रहे कि जो बात कही जाए अल्लाह की रजामंदी के लिए हो। अगर कोई गर्ज या दुनियावी मतलब का लगाव या बात फजूल किस्म की होगी तो खा कितने ही अल्फाज अच्छे में कही जाए तुम्हारे लिए वबाल बच जाएगी, इसलिए ऐसे कलाम से खामोशी बेहतर है। फिर सोने के मुतालिक बताया, इसी तरह सोने से मुतालिक जो कुछ तुमने कहा वो भी असल मकसूद नहीं। असल बात यह है कि जब तुम सोने लगो तो तुम्हारा दिल बुग़्ज़, कीना और हसद से खाली हो, तुम्हारे दिल में दुनिया और माले दुनिया की मोहब्बत ना हो और नींद आने तक अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहो। बहलोल की बात खत्म होते ही हजरत जुनैद बगदादी ने उनके हाथों को बोसा दिया और उनके लिए दुआ की। शेख जुनैद के मुरीद ये मंजर देखकर हैरान रह गए। इन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और ये बात उनकी समझ में आ गई कि हर शख्स को चाहिए कि वो जो बात न जानता हो उसे सीखने में जरा भी न शर्माए। हजरत जुनैद और बहलोल के इस वाक़े से बड़ा सबक यही हासिल होता है कि कुछ न जानने पर भी दिल में ये जानना कि हम बहुत कुछ जानते हैं बहुत नुकसान पहुंचाने वाली बात है। इससे इस्लाह और तरक्की के रास्ते बंद हो जाते हैं और इंसान गुमराही में फंसा रह जाता है। तफसीर रूहुल बयान में औलिया अल्लाह के तसर्रुफ के बारे में दर्ज है। औलिया कामिलीन दर हकीकत अल्लाह ताला के खुलफा है। यही इख्ताब आलम व उमूद समा और अवतादुल अर्थ है। इन्हीं से जमीन व आसमान का निजाम कायम है। दीन इलाही इन्हीं से आबाद है और ता क़यामत ये लोग मुख्तलिफ तबकात की हैसियत से मौजूद रहेंगे। औलिया व सालिहीन दुनिया व आखिरत में हर दौर की जमीन के वारिस हैं। इरशाद बारी ताला है, उसने अर्ज की, जिसके पास किताब का इल्म था कि मैं इसे हुजूर में हाजिर कर दूंगा एक पल मारने से पहले। फिर जब सुलेमान ने तख्त को अपने पास रखा, देखा कि ये मेरे रब के फजल से है ताकि मुझे आजमाए कि मैं इसका शुक्र अदा करता हूँ या नाशुक्री करता हूँ। इस आयत में हजरत आसिफ बिन बरकिया का बयान है जिनके पास तौरात शरीफ का यह इब्राहिमी ज़हाइफ या लौहे महफूज का थोड़ा सा इल्म था जिसकी वजह से वो वली हो चुके थे। वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के शागिर्द और वजीर भी थे और इल्म बातिन भी हासिल कर चुके थे। जाहिरी इल्म ये ताकत पैदा नहीं करता कि वो कहे मैं इस तख्त को आग झपकने से पहले हाजिर करूंगा और उसी वक्त तख्त उठा कर ले आए और हाजिर कर दिया। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देखा तो खुदा के हुजूर में सजदारेज हो गए। इससे वली की कुव्वत, इसकी रफ्तार, इसका मकाम हाजिर व नाजिर मालूम हो गया, क्योंकि हजरत आसिफ बिन बरखिया ने बिल्कीस के मकाम और उसके तख्त का पता किसी से न पूछा, नजर उठाई तो खुद देख लिया और आनन फानन वजनी तख्त बगैर किसी झगड़े या गाड़ी के खुद ला के हाजिर कर दिया। जब बनी इस्राइल के एक वली की ताकत का ये हाल है तो हुजूर खातिमुन नबिय्यीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत के औलिया की ताकत और करामात का अंदाजा कौन लगा सकता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का शुक्र अदा करना इसने मेरे शागिर्दों में ऐसे औलिया पैदा किए हैं साबित करता है कि वलायत पर हक है और औलिया अल्लाह की करामात हक है जिनका मुनकिर गुमराह होता है। हारून रशीद बहलोल की बहुत इज्जत करता था और उनसे हंसी मजाक का भी रिश्ता था। हारून के दरबार में उनकी आजादाना रसाई थी। जब उनका दिल चाहता दरबार में पहुंच जाते। एक दिन जब दरबार में बहलोल आए तो उस वक्त हारून रशीद के हाथ में एक छड़ी थी। हारून रशीद को मजाक सूझा। उसने उनको छेड़ते हुए कहा, बहलोल आपसे मेरी गुजारिश है। बहलोल ने पूछा, वो क्या? हारून रशीद ने कहा, मैं आपको ये छड़ी बतौर अमानत देता हूँ। आपको अपने से ज्यादा कोई बेवकूफ आदमी मिले तो ये छड़ी मेरी तरफ से दे देना। बहलोल ने कहा, बहुत अच्छा, और छड़ी अपने पास रख ली। वक्त गुजरता रहा और वो वक्त आ गया जब हारून रशीद बीमार होकर लबे मर्ग पहुंच गया। बहलोल को खबर हुई तो वो खलीफा की इयादत को पहुंचे। अमीरुल मोमिनीन, क्या हाल है? हारून ने जवाब दिया, हाल क्या पूछते हो, सफर दरपेश है। बहलोल ने कहा, कहाँ का सफर? आखिरत का सफर दरपेश है, दुनिया से जा रहा हूँ। हारून ने जवाब दिया, कितने दिन में वापसी है? हारून ने कहा, भाई ये आखिरत का सफर है, इससे वापस कोई नहीं आया करता। बहलोल ने कहा, अच्छा वापस नहीं आएंगे तो आपने सफर की राहत और आराम के लिए इंतजामात के लिए लाओ लश्कर और साजो सामान आगे भेजे हैं। हारून ने जवाब दिया, फिर बेवकूफी की बात, आखिरत के सफर में कोई साथ नहीं जाया करता, ना कोई लाओ लश्कर और ना ही कोई साजो सामान जाता है, वहां तो इंसान तन्हा जाता है। बहलोल ने कहा,
इतना लंबा सफर के वहां से वापस भी नहीं आना, लेकिन आपने कोई लाव लश्कर या सामान नहीं भेजा। हालांकि इससे पहले आपके जितने सफर होते थे इसमें इंतजामात के लिए आगे लाव लश्कर और सामान जाया करता था, इस सफर में क्यों नहीं भेजा? हारून ने कहा, नहीं, ये सफर नहीं ऐसा कि इसमें कुछ भेजा नहीं जा सकता। बहलोल ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, आपकी एक अमानत बहुत अरसे से पास रखी है। ये वो छड़ी है जिसे आपने मुझे देते हुए फरमाया था कि मुझसे ज्यादा कोई बेवकूफ मिले तो उसको दे देना। मैंने बहुत तलाश किया लेकिन मुझे अपने से ज्यादा बेवकूफ आपके अलावा कोई और नहीं मिला, इसलिए कि मैं देखा करता था कि अगर आपका छोटा सा भी सफर होता तो महीनों पहले उसकी तैयारी हुआ करती। खाने पीने का सामान, खैमे, लाव लश्कर सब भेजा जाता, और आपको ये भी मालूम था कि एक दिन इस लंबे सफर पर भी आपको जाना है जहां से वापसी मुमकिन नहीं, लेकिन इसके लिए आपकी कोई तैयारी नहीं थी। क्या दुनिया में आपसे ज्यादा कोई बेवकूफ होगा? लेकिन आपने से ज्यादा बेवकूफ मैंने आपको पाया, और आपकी इमानत आपको मुबारक हो। ये सुनकर हारून रशीद रो पड़ा और कहा, बहलोल, तुमने सच्ची बात की। सारी उम्र हम तुमको बेवकूफ समझते रहे, लेकिन हकीकत यह है कि हिकमत की बात तुमने ही कही। वाकई हम ही बेवकूफ है। हमने अपनी उम्र जाया की और इस आखिरत के सफर की तैयारी नहीं की। आज का कोई शख्स अब्बासी खालीफा हारून रशीद की इमारत और सरवत को नहीं पहुंच सकता। इसकी सल्तनत 3 बरआज़मों तक फैली हुई थी। आज के दौर के कई अमरीका उसकी मुट्ठी में थे। मुकम्मल अक्लमंदी, दानिशमंदी और हिकमत के साथ इतनी बड़ी सल्तनत पर बखैर खूबी हिकमत करने वाला इस दुनिया से जाते हुए इस बात की तस्दीक करता है कि वो अक्लमंद नहीं बल्कि बेवकूफ था। कि दुनियावी सफर के लिए तो वो लाव लश्कर और साजो सामान का इंतजाम करता रहा, लेकिन आखिरत के सफर के लिए उसने ऐसा कुछ नहीं किया। लिहाजा अक्लमंद और दाना वही है जो अपनी सफर आखिरत के लिए नेक अमाल का जखीरा जमा करे। लेकिन अफसोस कि आज हम मुसलमानों की सोच बदल गई। हम अपने नबी करीम अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने का दावा तो करते हैं, लेकिन आका करीम अलैहिस्सलाम की बात की मुखालिफत करते हुए हर उस शख्स को अक्लमंद समझते हैं जो बस माल कमाना और माल बनाना जानता हो, चाहे इसके लिए वो रिश्वतखोरी, बदउनवानी और करप्शन ही क्यों न करे। जबकि रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि अक्लमंद वो है जो अपने नफ्स का मुहासिबा करे और मौत के बाद की जिंदगी के लिए अमल करे, और आजिज वो है जो अपने नफ्स को ख्वाहिशों पर लगा दे, फिर अल्लाह ताला से तमन्नाएं करे। और फरमाने इलाही है, ए ईमान वालो, अल्लाह से डरते रहो। और हर शख्स को देखना चाहिए कि उसने कल यानी कयामत के लिए क्या भेजा है, और फिर अल्लाह से डरते रहो। यकीनन अल्लाह तुम्हारे अमाल से बाखबर है। बेशक दोज़खी और जन्नती बराबर नहीं हो सकते। एक सयाह के बारे में मशहूर था कि उसने घाट घाट का पानी पी रखा है। मुल्को सफर के दौरान वो वहां के ज़हीन और काबिल लोगों की सोहबत में रहा और बड़ा फैज उठाया, और अब जिस मुल्क में रह रहा है वहां भी बड़े आलिम उसका सामना करने और उससे किसी मौजू पर गुफ्तगू करने से कतराते हैं, क्योंकि वो उस जैसा इल्म नहीं रखते। इस सयाह की शोहरत उस मुल्क के बादशाह के कानों तक भी पहुंची जहां वो उन दिनों कयाम पजीर था। बादशाह ने सोचा क्यों ना वो अपने दरबारियों की जहानत का इम्तिहान ले। उसने खामोशी से सयाह को अपने दरबार में तलब किया। इसका इल्म वजीरों और मुशीरों को न था। बादशाह ने सयाह को दरबार में पाया तो सबसे उसका तारुफ कराया और वजीरों और मुशीरों की जहानत का इम्तिहान लेने की गर्ज से कहा कि वो दरबार के उमरा और मुअज़्ज़िज़ीन से कुछ सवालात करे, लेकिन कोई भी सयाह को दुरुस्त जवाब न दे सका। बादशाह अपने वजीरों और मुशीरों की नालायकी पर बहुत शर्मिंदा हुआ। उसने सयाह को रुखसत करने के बाद दरबारियों पर गुस्सा करते हुए कहा कि तुम सब लोग मेरे लिए बाइसे नंगो अब्स हो। आज इस सयाह ने तुम सबको आजिज किया। यूं मालूम होता है कि तुम उसके मुकाबले में किसी मदरसे के बच्चे हो। क्या तुम या कोई भी ऐसा आलिम फाजिल इस मुल्क में नहीं जो इस शख्स के लिए इल्म का जवाब दे सके? दरबारियों ने शर्म से सर झुकाए। किसी के पास अपनी सफाई में कहने को कुछ नहीं था। इस दौरान बादशाह का गुस्सा मजीद शिद्दत इख्तियार किया। उसने हुक्म दिया, कल इस सयाह को दोबारा दरबार में हाजिर किया जाएगा, और अगर कल तुम लोगों ने इसके सवालों के जवाब न दिए तो मैं तुम सब लोगों की दौलत इस सयाह को दे दूंगा। इससे कबल दरबार में हजरत बहलोल दाना भी हुआ करते थे, मगर दरबारियों ने उन्हें साजिशें करके वहां से निकलवा दिया था। बादशाह की बात सुनकर दरबारियों में तो खलबली मच गई। उनकी परेशानी का कोई ठिकाना न रहा। सब एक जगह जमा होकर सोचने लगे कि बादशाह की गुस्से से कैसे बचा जा सकता है। आखिर एक शख्स खुशी से बोला, दोस्तों, इस मुश्किल को हल करने के लिए हमारे पास बहलोल दाना मौजूद है। मुझे यकीन है कि वो हमारी खताएं भूल कर और तमाम रंजिशें खत्म करके इज्जत की खातिर इस सयाह का सामना करेगा और उसे लाजवाब करेगा। ये सुनकर बाकी सब लोगों की जान में जान आई। सब लोग मिलकर बहलोल के पास पहुंचे और माफी चाहते हुए सारा माजरा सुनाया। बहलोल दाना ने उन्हें तसल्ली दी और कहा, कल दरबार में जरूर आऊंगा। अगले रोज दरबार आरास्ता हुआ। वजीर, मुशीर सब कुर्सियों पर बैठे थे। बादशाह भी अपने तख्त पे बैठ चुका था। सयाह को भी एक कुर्सी पेश की गई। बादशाह ने अहले दरबार पे नजर डाली और पूछा, कौन है जो इस सयाह के सवालों के जवाब देगा? अहले दरबार ने आंखों ही आंखों में एक दूसरे से सवाल किया कि बहलोल का नाम आखिरकार किस तरह लें, कहीं इसका नाम बादशाह को गुस्सा न दिला दे। उस वक्त बहलोल की आवाज गूंजी, ये दीवाना हाजिर है, मैं इस सयाह के सवालों का जवाब दूंगा। बादशाह ने इजाजत दी। सयाह ने बहलोल की तरफ बड़ी हैरत से देखा और फिर बोला, क्या मैं आपसे सवाल करूं? जी हाँ, क्यों नहीं। बहलोल ने जवाब दिया,
तैय्या उठा और छड़ी से अपनी जमीन पर एक दायरा खींच दिया। बहलोल ने फौरन ही उठकर अपने असा से उस दायरे के दरमियान में एक लकीर खींचकर 2 हिस्सों में तकसीम किया। तैय्या के चेहरे पे मुस्कुराहट आई और उसने एक और दायरा खींच दिया। बहलोल ने इस मर्तबा दायरे को 4 हिस्सों में बांटा और एक हिस्से पर अपनी छड़ी रखकर खटखटाई। सैयाह ने कदरे हैरत से उसकी जानिब देखा और जमीन पर अपना हाथ उल्टी हालत में रखकर उंगलियां आसमान की तरफ उठा दी। बहलोल ने उठकर अपना हाथ जमीन पर इस तरह रखा कि इसके हाथ की पुश्त ऊपर यानी आसमान की तरफ थी। तैय्या अपनी निशिस्त पर वापस आ बैठा और तौसीफी लहजे में बोला, मरहबा आलिजा, आपको बहुत मुबारक हो। आपके यहाँ एक ऐसा दानिशमंद और आलिम मौजूद है जिस पर फख्र किया जा सकता है। ऐसे शख्स की कदर करनी चाहिए। बादशाह ने हैरत से पूछा, क्या बहलोल ने तुम्हारे सवालात के जवाब ठीक दिए? सैयाह बोला, जी जनाब, इसने किसी दर्जगाह से तालीम हासिल की है जो इसके पास इतना इल्म है कि मेरे इशारों को समझकर इनका ठीक जवाब दिया। अब वो सैयाह जाना ही चाहता था कि बादशाह ने उससे कहा, अगर तुम इन इशारों को जरा खुलकर बयान कर दो तो दरबार में मौजूद अहले इल्म भी महफूज हो सकेंगे और इनके इल्म में भी इजाफा होगा। क्यों नहीं बादशाह सलामत। सैयाह ने कहा और चंद लम्हे रुककर बोला कि आपने देखा मैंने जमीन पर एक दायरा खींचा। इस दायरे से मेरा मकसद जमीन का कोरा दिखाना था। आपके आलिम फौरन समझ गए और उसने दायरे के 2 बराबर हिस्से करके मुझ पर जाहिर किया कि मैं जमीन गोल होने पर यकीन रखता हूँ और इसके अस्रार और रमूज से भी वाकिफ हूँ। फिर उसने एक सीधी लकीर खींची जिसने जमीन को शुमाली और जुनूबी कोरे में बांट दिया। फिर आपने देखा कि एक और दायरा खींचा। आपके आलिम ने उसके 4 हिस्से करके मुझे समझाया कि 3 हिस्से पानी और 1 हिस्सा खुश्की है। और जब मैंने अपने हाथ की उंगलियों से जमीन पर उगने वाले नबातात की तरफ इशारा किया, यानी जब अपने हाथ को नीचे रखा और उंगलियां ऊपर की, तो उसका मकसद के नबातात और पौधों की तरफ इशारा करना था। तो उसके बाद बहलोल ने अपने हाथ को नीचे रखा और पुश्त आसमान की जानिब, तो बारिश और सूरज की निशानदही की और मतलब था कि ये दोनों नबातात और पौधों की बढ़ोतरी में और उनकी बालिदगी में मददगार साबित होते हैं। ये कहकर उस सैयाह ने बहलोल दाना की तरफ देखा और अकीदत से बोला, मैं एक बार फिर कहता हूँ कि आपको ऐसे दानिशमंद पे फख्र करना चाहिए। ये कहकर सैयाह ने इस दरबार से रुखसत होना चाहा तो बादशाह ने उसे रुकने को कहा और बहुत सा इनाम देकर जाने की इजाजत दी। इसके रुखसत होने के बाद बादशाह ने अपने दरबारियों से कहा कि इल्म कहीं से भी मिले उसे हासिल करने की कोशिश करो और अपने दरमियान मौजूद अक्लमंद और दहीन लोगों को इज्जत दो। आज इसी बहलोल ने तुम्हारी इज्जत और माल बचाया है जिसके खिलाफ तुम लोगों ने महाज बना रखा था। तमाम दरबारी इस पर शर्मिंदा हुए और बहलोल की तारीफ करके बादशाह को राजी किया। जब बहलोल दरबार से रुखसत हो रहा था तो उमरा उसे बाहर छोड़ने आए और उम्दा नस्ल के घोड़े पे सवार करवा के महाफिजों की मायत में रवाना किया। खलीफा हारून रशीद ने मशहूर बुजुर्ग हजरत बहलोल दाना से पूछा कि इस्लाम में ये जो कतईयत यानी चोर का हाथ काटने की सजा है, इसके बारे में क्या ख्याल है? फरमाया, अगर चोर ने चोरी मस्ती में की हो तो हाथ काटना चाहिए और अगर नेस्ती में की हो तो हाकिम वक्त कसर। इस जवाब में बड़ा खूबसूरत करीना यह है कि ऐसा हाकिम जिसके अहद में गरीब रियाया चोरी पे मजबूर होते हों, उनके मसाइल और गुर्बत की जड़ हाकिम वक्त ही होता है। और ये जवाब बहलोल दाना ने इस्लामी हुकूमत के लिए दिया, क्योंकि इस्लामी हुकूमत अगर सही मायने में इस्लामी हो तो इसमें किसी को चोरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि इसमें इतनी अदम मसावात, माशी तफावत और ऊंच नीच पैदा ही नहीं हो सकती कि इंसान मजबूर होकर चोरी का इर्तिकाब करे। और अगर कोई करता है तो वो मस्ती का शिकार है और फिर इसकी सजा वही है जो बहलोल दाना ने कही है। अब यही फिक्र है। बाकी दुनिया वालों के बारे में भी यही कहा जा सकता है कि अंगार जाने और लुहार जाने। एक दफा किसी ने हंसी से कहा, बहलोल आपको बादशाह ने गधों का हुक्म मुकर्रर कर दिया है। फरमाया, फिर यहीं बंधे रहो यानी तुम भी गधे हो। एक मर्तबा किसी ने कहा, बहलोल बादशाह ने तुम्हें पागलों की मर्दमशुमारी का हुक्म दिया। फरमाया, इसके लिए तो एक दफ्तर दरकार होगा। हाँ, दाना गिनने का हुक्म हो तो उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। एक दिन आप बादशाह के पास गए जो उस वक्त कुछ सोच रहा था। आपने पूछा, सोचते क्या हो? उसने कहा, मैं इस वक्त दुनिया की बेवफाई पे गौर कर रहा हूँ। इस बेवफा ने किसी से भी निबाह न किया। आपने फरमाया, अगर दुनिया वफादार होती तो तुम आज बादशाह क्यों कर बन सकते? बस इस किस्से को जाने दो और कुछ और सोचो। एक दफा बारिश की कसरत से अक्सर कब्रों में ऐसे शगाफ पड़े कि मुर्दों की हड्डियां और खोपड़ियां नजर आने लगी। बहलोल कब्रिस्तान में चंद खोपड़ियां सामने रखे देख रहे थे कि इत्तेफाकन बादशाह की सवारी भी आ निकली। उसने उन्हें इस शुगल में मसरूफ देख के पूछा, बहलोल क्या देख रहे हो? आपने फरमाया, तुम्हारा और मेरा दोनों का बाप मर चुका है। मैं अब ये देख रहा हूँ कि तुम्हारे बाप की खोपड़ी कौन सी है और मेरे बाप की कौन सी। बादशाह ने कहा, क्या मुर्दा, अमीर गरीब और शाहो गदा की हड्डियों में भी कुछ फर्क होता है कि पहचान लोगे? बहलोल ने कहा, फिर 4 दिन की झूठी नमूद पर बड़े लोग मगरूर होकर गरीबों को हकीर क्यों समझते हैं? बादशाह कायल हो गया और उस दिन से और भी हलीमी इख्तियार की। दोस्तों, याद रहे कि खलीफा हारून रशीद इल्म फजल के बेहद शाइक थे और उनके अहद में खिलाफत अब्बासिया अपने औजे कमाल को पहुंच गई थी। हारून रशीद की मलका जुबैदा ने मक्का मुकर्रमा में पानी की फराहमी के लिए नहर की तामीर करवाई थी जो नहर जुबैदा के नाम से मशहूर है। जब खलीफा हारून रशीद हज की नीयत से कूफे से गुजरा तो अहले कूफा उसको देखने के लिए बाहर निकल पड़े।
हारून, ओदज और महल में बड़ा जमान थे। बहलोल ने या हारून कह के आवाज दी। हारून रशीद ने पूछा कौन पुकार रहा है। बताया गया कि बहलोल है। बहलोल की बात सुनकर हारून रशीद रो पड़ा और आंसू गिरने लगे। फिर यूं गोया हुआ, तुमने भली बात कही है बहलोल, मजीद कुछ नसीहत करो। बहलोल ने कहा, अल्लाह ताला जिसको मालो जमाल और सल्तनत से नवाजे, फिर वो अपना माल भलाई के कामों में खर्च करे, अपने हुस्न जमाल को फितने से बचाए रखे और अपनी सल्तनत में अदल इंसाफ का दामन कभी हाथ से जाने न दे, तो अल्लाह ताला की किताब में इसे अबरार नेक लोगों में लिख दिया जाता है। हारून रशीद ने कहा, तुमने बहुत ही अच्छी बात की। फिर उसे इनाम से नवाजने का हुक्म दिया। बहलोल ने कहा, मुझे इस इनाम की कोई जरूरत नहीं, ये माल इसको वापस कर दो जिससे तुमने ले रखा है। हारून रशीद ने कहा, हम चाहते हैं कि आपके रोजीने का बंदोबस्त कर दें। बहलोल ने अपनी निगाह आसमान की तरफ उठा के कहा, अमीरुल मोमिनीन, मैं और तुम अल्लाह ही के परवरदा हैं, तो फिर ये नामुमकिन है कि वो तुमको याद रखे और मुझे भूल जाए। मंदरजा बाला वाक़े से जाहिर है कि उस वक्त के हुक्मरान आजकल के हुक्मरानों की तरह मुतकब्बिर और जाह परस्त नहीं थे। नेक और बेगर्ज लोगों की बात सुन लेते और उस पर अमल भी करते। अल्लाह से दुआ है कि वो आज के बरसर इक़्तिदार लोगों को भी सिरात मुस्तकीम पे चलने और अमले साले की तौफीक दे। एक मरतबा हजरत बहलोल का गुजर अबू हनीफा की मजलिस से हुआ। अबू हनीफा दर्स और तदरीस में मसरूफ थे और कह रहे थे कि मुझे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के 3 मसाइल में इख्तिलाफ है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम कहते हैं कि क़यामत के दिन इब्लीस को दोज़ख की आग में डाला जाएगा, लेकिन मैं इस बात से इत्तफाक नहीं करता क्योंकि इब्लीस की पैदाइश आग से हुई, भला आग को आग क्या जलाएगी। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम कहते हैं कि खुदा का दीदार महाल है, लेकिन मैं इस मसले में उनसे इख्तिलाफ रखता हूँ क्योंकि खुदा मौजूद है और साहिब वजूद काबिल रोयत है। इमाम जाफर कहते हैं कि इंसान फाइल मुख्तार है, जबकि मैं ये कहता हूँ कि बंदे अपने अफाल के खालिक नहीं, तमाम अफाल अल्लाह की तरफ से हैं। हजरत बहलोल ने अबू हनीफा के तीनों मसाइल गौर से सुने और एक मिट्टी का ढेला उठाकर अबू हनीफा को मारा और भाग निकले। मिट्टी का ढेला अबू हनीफा की पेशानी पे लगा और अबू हनीफा को सख्त तकलीफ महसूस हुई। अबू हनीफा अपने शागिर्दों के साथ हजरत बहलोल के पीछे दौड़े और उन तक पहुंच गए और उन्हें पकड़कर खलीफा के दरबार में ले आए। हजरत बहलोल ने खलीफा के दरबार में पूछा, आप मुझे यहाँ क्यों पकड़ कर लाए हैं? आखिर मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? अबू हनीफा ने खलीफा से कहा कि इसने मुझे मिट्टी का ढेला मारा और मैं इससे शदीद दर्द महसूस कर रहा हूँ। हजरत बहलोल ने कहा, अगर आप सच्चे हैं तो दर्द दिखाओ। अबू हनीफा ने कहा, नादान, दर्द भी कोई देखने की चीज है? बस है, लेकिन मैं दिखा नहीं सकता। हजरत बहलोल ने कहा, लेकिन चंद सानिये कबल तो आप ये कह रहे थे कि जब खुदा मौजूद है तो दिखाई क्यों नहीं देगा? पर मौजूद काबिल रुयत होता है। अब आपको भी दर्द है, आखिर आप अपना दर्द मुझे क्यों नहीं दिखाते? हजरत बहलोल ने खलीफा से कहा कि आप इनसे पूछे मैंने इन्हें क्या मारा है। अबू हनीफा ने कहा, जनाब इसने मुझे मिट्टी का ढेला मारा है। हजरत बहलोल ने कहा, अबू हनीफा ये मिट्टी आपको कैसे अजियत पहुंचा सकती है? आप भी तो खुद मिट्टी से बने हैं और आप अभी ये कह रहे थे कि इब्लीस को दोज़ख की आग कैसे जलाएगी, क्योंकि इब्लीस की पैदाइश आग से हुई और आग को आग कैसे जलाएगी? फिर हजरत बहलोल ने कहा कि इस खलीफा साहब मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ, ये लोग मुझे नाहक सजा दिलाना चाहते हैं। अबू हनीफा ने कहा, तुमने मुझे ढेला मारा, तुम बेगुनाह कैसे करार पा सकते हो? हजरत बहलोल ने कहा, लेकिन चंद लम्हे पहले तो आप अपने हल्का दर्स में ये कह रहे थे कि बंदे अज खुद कुछ भी नहीं कर सकते, इस जहान में जो कुछ भी हो रहा है वो खुदा की तरफ से है, लिहाजा अब अगर आपको ढेला लगा है तो ढेला मारने वाला मैं नहीं बल्कि खुदा है। ये सुनकर अबू हनीफा को अपनी गलती का एहसास हुआ और समझ गए कि बहलोल के एक ढेले ने इनके तीनों नजरियात को बातिल कर दिया। हारून रशीद हजरत बहलोल की बातें सुन के मुस्कुराए और फरीकैन को अपने दरबार से जाने की इजाजत दे दी। दोस्तों, हजरत बहलोल दाना अक्सर ऐसी हरकत और बातें कर दिया करते जो बज़ाहिर समझ में न आती। भूख लगती तो भरी मजलिस में लेके खाना शुरू कर देते, नींद आती तो चाहे कोई अमीर या गरीब पास बैठा हो पांव फैलाकर लेट जाते। इन बातों से बाज लोग उन्हें बहलोल दीवाना कहते और बाज बहलोल दाना। कहते हैं कि हजरत बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में बगदाद के बादशाह की दिली तमन्ना थी कि हजरत बहलोल दाना उनसे मुलाकात करें, लेकिन आप रहमतुल्लाह अलैह कभी भी बादशाह के दरबार में तशरीफ न ले गए। एक दिन यूं हुआ कि बादशाह अपने महल की छत पर बैठा था कि उसने हजरत बहलोल दाना को शाही महल के करीब से गुजरते देखा। फौरन हुक्म दिया कि हजरत बहलोल को कमंड डालकर महल की छत पे खींच लिया जाए। चुनाचे ऐसा ही किया गया। जब आप रहमतुल्लाह अलैह बादशाह के सामने पहुंचे तो बादशाह ने पूछा, ये फरमाइए अल्लाह तक कैसे पहुंचे? फरमाया, जिस तरह आप तक पहुंचा। बादशाह ने अर्ज की, मैं समझा नहीं। फरमाया, ए बादशाह, अगर मैं खुद आप तक पहुंचना चाहता तो नहा धोकर लिबास फाखरा पहनकर दरबान की मिन्नतें करके महल के अंदर दाखिल होता, फिर अर्जी पेश करता, घंटों इंतजार करता, फिर भी मुमकिन था आप मेरी दरखास्त रद्द करते, लेकिन जब आपने मुझे खुद बुलाना चाहा तो महज कुछ लम्हों में ही अपने सामने बुला लिया। इसी तरह जब अल्लाह को अपने बंदे की कोई अदा पसंद आती है तो उसे लम्हों में कुर्ब की वो मंजिलें तय करवा दी जाती हैं जो बड़े बड़े आबिदों के लिए बाइसे रश्क बन जाती हैं। दोस्तों, याद रहे, बहलोल तारीख के एक यगाना रोजगार किरदार गुजरे हैं। तारीख अरब में इस नाम के कई और लोगों का भी तस्करा मिलता है, लेकिन बहलोल से मुराद वो सूफी हैं
जिन्होंने दीवानगी का मफहूम बदल दिया और लोगों को दानिशमंदी के मायने समझाए। तारीख के सफात में वो वाहिद दीवाने हैं जो दानाए राज हैं और जिन्होंने दानिशमंदों को हिकमत और दानिश सिखाई। उन्होंने ऐसी अनोखी राह चुनी जो आज तक किसी के कदमों से पामाल न हुई। बहलोल का पहला जिक्र मशहूर अरब फलसफी अल जाहिज की किताब अल बयान में मिलता है। हिकायात के मुताले से इनके जो खदोखाल उभरते हैं वो एक गैर मामूली ज़हीन, दानिशमंद और तबाह शख्स के हैं। वो हकीकी मायनों में खुदा रसीदा आलिम, नाबगा रोजगार और बेहतरीन हंसी मिजाज रखते थे। इस दौर के हालात और माशरत पर उनकी निगाह गहरी थी। एक दिन बहलोल हारून रशीद के महल पहुंचे तो देखा कि मसनद खाली है और कोई रोक टोक करने वाला भी नहीं। फौरन बेखटके ऊपर गए और हारून रशीद की जगह तख्त पे बैठ गए। जब दरबारी गुलामों ने देखा तो फहरन बहलोल को कोड़े मारकर हारून रशीद की मसनद से नीचे लाए। दर्द की शिद्दत के बायस बहलोल की आंखों में आंसू आए। उसी वक्त हारून आ पहुंचा। देखा कि बहलोल रो रहे। उसने पासबानों से उनके रोने का सबब पूछा। गुलाम ने पूरी कैफियत सुनाई। हारून रशीद ने उन्हें डांटा और बहलोल की दिलजोई की। बहलोल ने कहा, मैं अपने नहीं तेरे हाल पे रो रहा हूँ, इसलिए कि मैं तेरी जगह से चंद ही लम्हे बैठा मगर इतनी मार खाई और मुसीबत झेली, और तू जो उम्र भर से इस मसनद पे बैठा चला रहा है फिर भी अपने अंजाम की फिक्र नहीं करता। कहते हैं कि एक दफा बहलोल बसरा गए। क्योंकि इस शहर में उनका कोई मुलाकाती न था, लिहाजा उन्होंने थोड़े दिनों के लिए कमरा किराए पे लिया, लेकिन वो इतना पुराना था कि जरा सी तेज हवा चलने पर लरसने लगता। बहलोल मालिक मकान के पास गए और कहा, आपने जो कमरा दिया वो बेहद खतरनाक है, क्योंकि तेज हवा चलने पर उसकी छत और दीवारें बोलने लगती हैं। मालिक मकान मजाहिया किस्म का था, कहने लगा, ये कोई बुराई नहीं। आप जानते हैं कि तमाम मौजूदात पर वक्त खुदा की तारीफ करती है और तस्बीह पढ़ती है, और ये कमरे की हमदो तस्बीह है। बहलोल ने कहा, यह दुरुस्त है, लेकिन मौजूदात तस्बीह और तहलील के आखिर में सजदा भी करती है, और मैं कमरे के सजदे के डर से बचना चाहता हूँ। दोस्तों, एक दफा बहलोल बच्चों के हुजूम में बच्चा बने दीवाने जैसी हरकतें करते वीराने में पहुंच गए। वो बच्चों के साथ दौड़कर हाँप गए और कुछ थकावट महसूस की। वो अपने आसा के फर्जी घोड़े से उतरे और बच्चों से बोले, मेरा घोड़ा थक गया है, इसे भूख भी लगी है। उन्होंने फिर आसा को घोड़े की तरह चमकार कर खंडर की शिकस्ता दीवार के साथ खड़ा कर दिया। बच्चे खिलखिला के हंस पड़े। वो फिर कुछ देर उनके साथ छेड़खानी करते रहे। जब बहलोल ने उनकी तरफ कोई तवज्जो न दी तो वो एक एक करके घर लौट गए। बहलोल ने मगर उसी खंडर में डेरा जमा लिया। उनकी अदम मौजूदगी से घर वाले परेशान हुए। अजीज रिश्तेदार इकट्ठे हुए और लोगों से पूछते मालूम करते उस खंडर तक आ पहुंचे जहां उन्होंने बसेरा किया था। देखा कि वो नंगी जमीन पर अपने बाजू का तकिया बनाए चैन की नींद सो रहे हैं। उनकी ये हालत देखकर अजीजों की आंखों में आंसू आ गए। कुछ इज़हारे अफसोस करने लगे। एक ने झुककर बहलोल का शाना हिलाया और बोला, वाहिब उठो, जुनून की इस नींद से जागो, आंखें खोलो। बहलोल ने नींद से भरी आंखें खोलकर चारों तरफ जमा शनासा चेहरों को देखा जिन पर दुख और तफक्कुर की लहरें थी। क्या बात है? उन्होंने उठते हुए पूछा। एक अजीज ने करीब बैठकर उनकी आवाज से गर्ज झाड़ते हुए कहा, वाहिब उठो, घर चलो, ये भी तो घर है। बहलोल ने खंडर की टूटी दीवारों की तरफ इशारा किया। भला इसमें क्या कमी है? न हमसाये का झगड़ा, न मालिक मकान का खौफ, न दरबान की मुसीबत, न चोर का डर। हमारी बात समझने की कोशिश करो। ये जगह तुम्हारे शायान शान नहीं, इनके रिश्तेदार परेशान हो गए। ये जगह मेरी शायान शान क्यों नहीं? ये तो खलीफा के महल से भी बेहतर है कि रोजे महशर मुझसे इसके बारे में कोई पूछगछ तो नहीं होगी। उनके रिश्तेदार ज़िद हो गए। उन्होंने बतीरी कोशिश की कि उन्हें घर ले जाएं, लेकिन वो कतन रजामंद न हुए। एक दिन बहलोल का दोस्त गंदुम पिसवाकर गधे पिला रहा था। बहलोल के घर के सामने पहुंचा तो उसका गधा अचानक थकन के मारे गिर पड़ा। दोस्त ने बहलोल से कहा कि अपना गधा उसे दे ताकि वो उस पर आटा लाद सके। बहलोल ने तय कर रखा था कि वो किसी को अपना गधा न देंगे। कहने लगे, मेरे पास गधा नहीं। इत्तेफाक से घर के सहन में बंधा उनका गधा रींगने लगा। दोस्त ताज्जुब से कहने लगा, तुम कहते हो तुम्हारे पास गधा नहीं, मगर तुम्हारे घर से रींखने की आवाज आ रही है। बहलोल कहने लगे, बड़े अहमक और कभी हो, मैं 40 साल से तुम्हारा दोस्त हूं, मगर तुम मेरी बात नहीं मानते बल्कि एक गधे की सुन रहे हो। हजरत बहलोल दाना तशरीफ फरमा थे। ताजिर आया, बसत अदब एहतराम अर्ज करने लगा, हुजूर कौन सी तिजारत करूं जो नफामंद हो? फरमाया, स्याह कपड़ा ले लो। उसने खरीद लिया। कुछ दिनों बाद इस शहर का नामी गिरामी आदमी फौत हुआ। अहले शहर को स्याह कपड़े की जरूरत पड़ी। उसने मुंह मांगी कीमत पे फरोख्त किया, मालदार हो गया। कुछ अरसे बाद वही ताजिर घोड़े पे सवार कहीं जा रहा था कि बहलोल दाना पे नजर पड़ी। तकब्बुर और रऊनत से कहने लगा, ओ दीवाने, अब की बार क्या खरीदूं? आपने फरमाया तरबूज लो। उसने सारे दर्याब तरबूज ले लिए। कोई सौदागर न मिला। एक ही हफ्ते में सारे खराब हुए और पाई पाई का मोहताज हुआ। इस बेकसी के आलम में उसका सामना हजरत बहलोल से हो गया। रोते हुए कहने लगा, ये आपने मेरे साथ क्या किया? हजरत बहलोल दाना रहमुल्लाह अलैह ने फरमाया, ये मैंने नहीं, तेरे लहजों और तेरे लफ्जों ने सब किया। जब तू अदब से आया तो मालामाल हुआ, और जब बेअदब बनकर आया तो कंगाल हो गया। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब।
दोस्तों यही वो हस्तियां हैं जो अल्लाह से मिला देती हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल की महबूब बंदों से मोहब्बत और अकीदत का ताल्लुक कायम रखते हुए इनके नक्शे कदम पे चलना यकीनन बहुत बड़ी सआदत का हामिल है, क्योंकि ये वो पाकीज़ा हस्तियां हैं कि जिन पे अल्लाह अज़्ज़ व जल ने अपने इनाम और इकराम की बारिशें नाजिल फरमाते हुए उन्हें कुरान पाक में अपने इनाम याफ्ता बंदे करार दिया। चुनांचे सूरह निसा में इरशाद बारी ताला है, और जो अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म माने तो उसे उनका साथ मिलेगा जिन पर अल्लाह ने फजल किया, यानी अंबिया और सिद्दीक और शुहदा और नेक लोग, ये क्या ही अच्छे साथी हैं। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिस शख्स ने मेरे किसी वली से दुश्मनी की, मेरा उसके साथ ऐलान जंग, और मेरा बंदा जिन चीजों से मुझसे करीब होता है उनमें सबसे महबूब वो चीजें हैं जो मैंने उस पर फर्ज करार दी, और मेरा बंदा नवाफिल के जरिए मेरा कुर्ब हासिल करता रहता है, यहां तक कि मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूं, और जब मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूं तो फिर इसके नतीजे में मैं उसका कान बन जाता हूं जिससे वो सुनता है, उसकी आंख बन जाता हूं जिससे वो देखता है, उसका हाथ बन जाता हूं जिससे वो पकड़ता है, और उसका पैर बन जाता हूं जिससे वो चलता है। अगर वो किसी चीज से मेरी पनाह चाहता है तो मैं जरूर पनाह देता हूं, और किसी चीज के करने में मुझे इतना दर्द नहीं होता जितना तरद्दुद मोमिन की रूह कब्ज करने में होता है, जो मौत को नापसंद करता है और मुझे उसे गमगीन करना नापसंद होता है। अल्लाह ताला का फरमान है, जिसने मेरे किसी वली से दुश्मनी मोल ली उसके खिलाफ मेरा ऐलान जंग है, यानी जिसने अल्लाह के वली से यानी किसी मोमिन और मुत्तकी और अल्लाह की शरीयत के पाबंद शख्स को तकलीफ दी और उससे दुश्मनी की, उसे मैं बताता हूं कि मैं उससे जंग करने वाला हूं, क्योंकि मेरे औलिया से दुश्मनी करके उसने मुझसे जंग बोल ली। याद रहे कि अल्लाह हमारा महबूब है और औलिया अल्लाह की महबूब। जब ये अल्लाह के महबूब तो हमारे भी महबूब। दोस्त के दुश्मन को हम अपना दोस्त नहीं बना सकते, और दोस्त के महबूब को हम अपना दुश्मन नहीं करार दे सकते। जिस शख्स को हमारे दोस्त से इनाद है वो कभी हमारा महबूब नहीं बन सकता, और जिस शख्स को हमारे दोस्त से मोहब्बत और खुलूस वो कभी हमारा दुश्मन नहीं बन सकता। हम औलिया अल्लाह को महज इसलिए मानते हैं कि वो अल्लाह वाले हैं, और उनका मानना दरअसल अल्लाह का मानना है। उनको अल्लाह से कोई निस्बत ना होती तो हमारा उनसे क्या ताल्लुक था। हमारा ताल्लुक तो महज इसलिए है कि वो अल्लाह वाले हैं। यही वजह है कि हम उन बुजुर्गों की याद मनाते हैं। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को दबा दें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व फी अमानिल्लाह।